Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, let's begin with our next chapter, which is about mammals. Unscramble the letters from the clue box given below to get the names of the mammals described. बच्चों यहाँ पे हमें कुछ mammals के बारे में बताया गया है, ठीक है? हम ये पढ़ लेते हैं, फिर उनके नाम हम आइडेंटिफाई करेंगे. First, cousins of the donkey. They are descendants of the animals that Christopher Columbus took with him as pack animals. They do not chew cud. In captivity, they have to be fed large blocks of salt. बच्चों ये डोंकी के कज़न माने जाते हैं, ठीक है, और क्रिस्टोफर कोलंबस इन्हें अपनी यात्राओं में लेके जाते थे ताकि इन पे सामान वगैरह लादा जा सके. ये कर्ड नहीं खाते थे, इसलिए इन्हें लार्ज ब्लॉक ऑफ सॉल्ट दिया जाता था खाने के लिए. इनका नाम है बच्चों ओनेगर और वाइल्ड एस. सेकेंड, this animal has characteristics of both mammals and reptiles. Like mammals, it has hair on its body and it suckles its young. Like reptiles, it lay eggs and does not have external ears. ये जो एनिमल है इसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मैमल की भी और रेप्टाइल्स की भी. इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे डक बिल्ड प्लैटिपस कहा जाता है. थर्ड, they are scavengers by day and active hunting predators in packs in night. In appearance, they resemble a dog but have the internal structures of a cat. They pretend to be dead to make their attackers lose interest in them. अब बच्चों ये जो स्कैवेंजर्स है ये डे में सोते हैं और ये एक्टिव होते हैं रात को, ठीक है. इनका जो फेस होता है वो डॉग की तरह होता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैट की तरह माना जाता है और कभी कभी ये अपने आप को डेड प्रिटेंड करते हैं ताकि इनका जो अटैकर है वो इसे छोड़कर चला जाए. इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हाइना कहा जाता है. फोर्थ, this animal has scales on its body but these are actually modified hairs. Its food consists of eggs, ants and grubs. It especially relishes ब्लैक एंड्स. बच्चों ये जो एनिमल्स है इसकी बॉडी में छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं एक्चुअली में मॉडिफाइड हेयर्स होते हैं और ये एग्स खाता है, एंड्स को खाता है. इसका नाम है बच्चों पेंगोलिन. फोर्थ, a member of raccoon family. It lives at height of 1500 to 3000 meters in the steep sides mountain forest of bamboo in China, western Sichuan and eastern Sichuan. It spends about 12 hours a day feeding exclusively on bamboo shoots and stems. It usually prefer to live alone. बच्चों ये जो एनिमल है ये रकून फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर चाइना के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है और ये क्या खाता है? ये बैम्बू शूट्स, बैम्बू ही खाता है सारा टाइम. इसका नाम है बच्चों जायंट पैंडा. 6, दिस इज द ओनली एनिमल विच कैन बी इन्फेक्टेड विद लेप्रोसी germs. Scientists believe that the ability to grow the germs may pave the way for developing a vaccine against the disease. It has an armor-like covering made up of modified horn-like skin. It is a. अब बच्चों ये आपको बताना है कि एक एनिमल, एक ऐसा एनिमल है जो कि एक लौता एनिमल माना जाता है जो कि लेप्रोसी जर्म से इन्फेक्टेड हो सकता है. साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसमें ऐसी एबिलिटी होती है ताकि ये एक जर्म को ग्रो कर सके जो कि किसी वैक्सीन को बनाने में हेल्प करती है अगेंस्ट द डिसीज. इसका नाम है बच्चों आर्माडिल्लो. 7th, the name of this animal means wild man of the woods. It is shy and gentle and prefers to live in solitude. Each night it builds a new nest to sleep in. बच्चों ये एक ऐसा एनिमल है जो कि वाइल्ड मैन ऑफ वुड्स माना जाता है और ये काफ़ी शाई एंड जेंटल होता है, ठीक है, और ये अकेला रहना ही इसे पसंद आता है. इसका नाम है बच्चों ओरेंगटन. 8th, this animal is the smallest of the apes. It has long arms which it uses to swim from tree to tree. ये जो एनिमल है ये एप्स का स्मॉलेस्ट प्रजाति मानी जाती है और ये ट्री टू ट्री क्या करते हैं? स्विंग करते हैं, जंप करते हैं. इनका नाम है बच्चों गिबॉन. नाउ नॉलेज कॉर्नर. The European hedgehog uses a peculiar method to tackle snakes. It bites the tail of the snake and then roll up into a spiny ball. The angry snake strikes at the hedgehog only to find itself stuck on the spines. After several strikes, the snake becomes exhausted and then the hedgehog eats it leisurely.
The antler of a stag deer are made up of solid bone. They are formed and shed every year to get rid of the extra calcium in the body. The stag's age can be calculated from the numbers of branches on the antler. The only pandas to be found in India is the red panda or cat bear which lives in the forest of eastern Himalayas. अब बच्चों यहाँ पे कुछ फैक्ट हमें बताए गए हैं कि यूरोपियन जो हेजहॉग होता है वो क्या करता है, इसकी एक टेक्निक होती है किसी भी स्नेक को पकड़ने की। वो स्नेक की टेल पे बाइट करता है और फिर क्या बन जाता है, एक बॉल की तरह वो बन जाता है, ठीक है। अब उसकी जो आउटर बॉडी की जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, वो बहुत हार्ड होती है, तो उस पर स्नेक के बाइट का कोई भी असर नहीं होता। तो जो स्नेक होता है वो उसे बार बार क्या करता रहता है, बाइट करता रहता है, और जब वो बार बार बाइट करता है तो वो क्या हो जाता है, थक जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, और फिर वो जो हेजहॉग होता है वो स्नेक को खा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है जो स्टैग डियर्स होते हैं उनके जो एंटलर्स होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, हैवी होते हैं, और वो सॉलिड बोन के बने हुए होते हैं। तो ये हर साल क्या करते हैं, उन्हें शेड कर देते हैं, ठीक है, फिर ये हर साल रीग्रो करते हैं उन्हें। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में ओनली रेड पांडा ही है जो पाया जाता है, उसे कैट बियर भी कहा जाता है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ईस्टर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।